Hello students, I am Jyoti Yadav. Today we welcome back in our our channel. We will discuss about the chapter number 10 in history. India after independence. In previous chapter we have discussed about that how our freedom fighters strive for our independence, and finally after the with the partition of India we got the freedom in 1947. So in this video we will discuss about the circumstances and the conditions after the partition of India or after the getting of independence. So let us start. Firstly, a new and divided nation. You know very well that our country got freedom on 15 August 1947, but there was a condition that it was divided into two separate nations. One was India and second one was the पाकिस्तान. सो ए न्यू एंड डिवाइडेड नेशन. तो अब जो देश था वो क्या था, एक बटा हुआ था, क्योंकि इसके दो हिस्से हो चुके थे, इंडिया और पाकिस्तान. इन 1947 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज ऑलमोस्ट 345 million and the population was also divided into two nations, and at that time the population was 345 million. Today you know very well about the population has increased, and it was also divided between high caste and low caste, between the majority Hindu community and Indians who practiced other faiths. And second thing, it was divided according to the population also, because a new separate nation was formed, that was the Pakistan. And second thing, it was also divided in between the caste. Some caste were considered them upper caste and some caste were considered as their low caste. And third thing is that between the majority Hindu community, because Hindus were always remains in majority और minority टू वर्ड्स होते हैं. मेजोरिटी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में जो सबसे ज़्यादा हो, चाहे वो रिलीजन के बेस पर ज़्यादा हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पर ज़्यादा हो, चाहे किसी भी कास्ट के बेस पर ज़्यादा हो. तो यहाँ इंडिया के अंदर हिंदुज़्म, जो हिंदू धर्म को फॉलोवर्स थे, वो क्या थे, मेजोरिटी. एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस अदर, फिर बाकी जो धर्म वाले बच गए, चाहे उसमें मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, वो सब क्या थे, माइनॉरिटीज़ में. ठीक है. द सिटीजन ऑफ दिस वास्ट लैंड वर डिफरेंट इन द फॉलोइंग वे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस country was facing so many diversities also. और इसके अलावा भारत में और भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज थी. डाइवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन एनी मैनर सच एज लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, फूड हैबिट, स्किन कलर, सो मैनी डाइवर्सिटीज आर देयर. तो उस समय इंडिया के अंदर और आज भी अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, और इसीलिए इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स डाइवर्सिटी. बट दिस डाइवर्सिटी क्रिएट्स ए यूनिटी, नॉट द डिसयूनिटी. ये एक सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है कि इतने सारे डाइवर्सिटी होते हुए भी ये हमारी यूनिटी को स्ट्रेंथ करता है, ना कि डिसयूनिटी. ठीक है. तो आज इंडिया के अंदर जो डिफरेंसेज हैं, जो डाइवर्सिटीज हैं, वो किस किस में है, different languages. It means they spoke many different language at that time also. So many language speakers were there, and today also in South India many languages are northern part, other languages in eastern and in the western part. So many diversity in language also at that time also, today also. They wore many different kinds of dress, and the people are different from each other in the sense of dress. Some people are looking different clothes, some are wearing the different clothes. They ate different kinds of food, and food habits are also different. So this is the another part of diversity. They practice different professions, and they are different in the profession and the work. मतलब कुछ लोग किसी तरह का वर्क करते हैं, कोई किसी तरह का वर्क करते हैं. इट मीन्स यहाँ पर भी क्या है, डाइवर्सिटीज़ हैं. Therefore it was difficult to live together in one nation state. तो इस इन सारी डाइवर्सिटीज़ के होते हुए एक करना, इतने बड़े देश को एक करना, उनको एक साथ रखना बहुत ही मुश्किल काम था उस समय जब देश को आज़ादी मिली थी. ठीक है. और इस मुश्किल काम को हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने करके भी दिखाया. देखिए आगे पढ़ते हैं.
इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947 इट फेस्ड ए सीरीज ऑफ चैलेंजेस। अब जब भी कोई देश का इस तरह से बंटवारा होता है या एक लंबे स्ट्रगल के बाद कुछ हमें मिलता है तो उसमें बहुत सारे हमारे चैलेंज आते हैं। जैसे आपका कोरोना का ही एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोरोना के लंबे टाइम के लॉकडाउन के बाद जब हम क्लासेस में जाते हैं, आप लोग आते हैं क्लासेस में, तो उस समय हमारे सामने भी चैलेंज होते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप आउट ऑफ बुक से हो जाते, बिल्कुल कट हो जाते हैं, केवल फ़ोन पर डिपेंड रहते हैं। और हमारे सामने भी उन सारी चीज़ों को दोबारा से कनेक्ट करना, आपको रूटीन में लेकर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसी तरह से एक लंबे स्ट्रगल की सीरीज को ख़त्म करके फाइनली इंडिया को आज़ादी मिली थी। और उस समय उनके सामने सबसे बड़े चैलेंज थे, वो कौन कौन से थे देखिए। सबसे पहला है रिहेबिलिएशन ऑफ 8 मिलियन रिफ्यूजीज एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। रिफ्यूजीज वो होते हैं जो एक देश से दूसरे देश में शरण लेने के लिए आते हैं कि भाई या तो उस देश में कंडीशंस अच्छी नहीं है जहाँ पर वो सर्वाइव कर सके, या इस तरह का कोई पार्टीशन होता है। तो उस समय 8 मिलियन रिफ्यूजीज केम टू इंडिया एज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। तो उनको क्या करना, ऑल थिंग्स प्रोवाइड करना, कि जो भी उनके लिए रहने के लिए खाना पानी रोजगार ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना। सबसे पहला तो उनके लिए था घर का इंतजाम करना। इट मीन्स होम फॉर द ऑल रिफ्यूजीज। क्रोर्स ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। और लगभग करोड़ों के आसपास लोग वहाँ से कहाँ आ गए, इंडिया के अंदर। It was the biggest responsibility to rehabilitate the homeless and providing them with the job, and it was a big challenge for at that time the ruling government or our Indian leaders that they have to provide the all refugees for their homes and with their jobs। ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि सबसे पहले उनके घर का इंतजाम करें और उस घर को चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे, इसलिए उनके लिए जॉब का अरेंजमेंट किया जाए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भी पहले घर दीजिए, काम देंगे, तब जाकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म होगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था। सेकेंडली, इंटीग्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट 500 princely states each ruled by a Maharaja or a Nawab। You know very well that during the British time, India was controlled some small Maharajas or Nawabs, and at that time they were controlling the mostly 500 princely states। तो उनको भी क्या करना, एक करना, उन नवाब और महाराजाओं को अपने कंट्रोल में लेकर और उनको वहाँ से हटाकर क्या करना, उन सबको एक इंडिया के अंदर में शामिल करना, यूनाइट करना। ये भी एक दूसरा बड़ा चैलेंज था। दे हैड टू बी कन्विंस्ड टू ज्वाइन द इंडिया एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल डू इट। और उनको कन्विंस करना कि आइदर दे विल ज्वाइन टू पाकिस्तान और नॉट दे विल ज्वाइन टू इंडिया, या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें। उन 500 प्रिंसेस स्टेट्स के जो महाराजा नवाब, उनको फरमान भेजा गया, उनको ऑर्डर दिया गया, उनको कन्विंस किया गया कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें या फिर पाकिस्तान को। और ये काम किया किसने, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो उस समय वहाँ के क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। एंड ऑल्दो बाय डिस्प्लेइंग डिप्लोमेसी, और उसमें किसी तरह का कोई भी डिप्लोमेसी का मतलब कोई भी षड्यंत्र वगैरह ऐसा नहीं रचा गया था, भी गलत तरीके से उनको नहीं कहा गया था, फोर्सफुली उनको नहीं कहा गया था, उनको केवल आराम से कन्विंस किया गया था, समझाया गया था कि वो इंडिया के अंदर ज्वाइन हो जाए। ऑल्दो रूलर्स ऑफ कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद रिमेन्ड अनडिसाइडेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। हालांकि बाकी सभी रूलर्स ने अपने आप को ज्वाइन कर लिया था इंडिया में, लेकिन कश्मीर के, जूनागढ़ और हैदराबाद के 3 रूलर्स ऐसे थे जिन्होंने अपना डिसीजन नहीं दिया था। इसका मतलब वो अपने आप को फ्री रखना चाहते। इट मीन्स दे वर अंडर नॉट वांटेड टू अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स और नॉर बाय द इंडियंस, देर रिमेन्स फ्री। वो अपने आप को फ्री रखना चाहते थे कि जैसे कि पहले हम रूलर्स और नवाब के रूप में थे, ऐसे ही हम रहे। एंड लॉन्ग टाइम बट लेटर दे ऑल एग्री टू ज्वाइन इंडिया। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद ही उन्होंने भी इंडिया को ज्वाइन कर लिया। और आज आपको पता है हैदराबाद हमारे देश का एक हिस्सा है। दीज प्रॉब्लम्स ऑफ द रिफ्यूजीज एंड द प्रिंसली स्टेट्स नीडेड इमीडिएटली सॉल्यूशन। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी उस समय इमीडिएट मतलब तुरंत इसको सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। तब जाकर आगे कोई सिस्टम है वो बनाया जाने लगा और उसके बाद से ही सारा सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है। यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया हुआ है, जो आपको पता है साबरमती डैम के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बनाए गए हैं। इसको पूरे
वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपको पता है आयरन मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। क्यों दिया गया था? इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने, कोई भी व्यक्ति इतना डिफिकल्ट वर्क नहीं कर पाता कि 500 स्टेट्स को एक साथ करके भारत में मिला दें, और ये कठिन काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए उनको ये टाइटल दिया गया था आयरन मैन ऑफ द इंडिया। ठीक है। बिसाइड्स दीज प्रॉब्लम्स इंडिया ऑल्सो फेस्ड फॉलोइंग अदर प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स थी ये तो उस समय इमीडिएट तुरंत हुई थी, जैसे आज़ादी मिली थी उसी समय। इसके अलावा कुछ हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्व करना जरूरी था, वो देखें कौन कौन सी थी। सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड टू इंश्योर डेवलपमेंट, इट मीन्स बाय रिमूविंग द ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड गिविंग द ऑल development opportunity so that the all people can develop their self by their economic growth. Many economic difficulties were faced by India after partition, such as, but at that time India was facing economic difficulty, you know very well, due to the British policies. The Britishers has exploited every part of the society and they have drained all wealth from the India. So now the economic conditions were very critical, and second reason was that due to the partition. So India was facing economic difficulties after the partition, like as shortage of rice and the wheat producing area which went to Pakistan. First problem was that the shortage of rice and the wheat, because some northern plains areas has given to the Pakistan, and these were the leading producer of the rice and wheat. It means grain shortage is there, कि जो हमारे नॉर्थन प्लेन्स के जो काफ़ी फर्टाइल लैंड वाले जो एरिया थे उसमें से कुछ हमारे कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में आफ्टर द पार्टीशन, और इस वजह से इंडिया के अंदर ग्रेन्स की शॉर्टेज हुई। ठीक है, उस समय, और पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी, रिफ्यूजीज भी आ रहे थे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ग्रेन्स की, जिसमें राइस और व्हीट, क्योंकि ये दो हमारी क्या है? स्टेपल डाइट है। सेकेंड थिंग इज द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटीरियल्स सच एज जूट एंड कॉटन ग्रोइंग मेनली इन पाकिस्तान। सेकेंड थिंग वाज दैट अगर हमें अपॉर्चुनिटी देनी है, जॉब अपॉर्चुनिटी देनी है, इट मीन्स many industries will be set up by the government, but at that time the only main two industries were there, jute and cotton industries, and they were facing the shortage of raw materials, because raw materials growing areas has went in the पाकिस्तान। जैसे कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट, कुछ पंजाब का, कुछ हरियाणा का, ये कुछ स्टेट्स के कुछ हिस्से जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट और कॉटन का प्रोडक्शन था, ये कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में, जैसे डिवीजन हुआ। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल की क्या हो गई? शॉर्टेज हो गई इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, और जब इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? तो सेकेंड थिंग वाज दैट द प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। थर्ड वन वाज द almost non-existence of irrigation facilities. At that time, you know very well, no technology was developed, and due to the shortage of development of technology, there was no good irrigation facilities were available. Almost all people were depend for the irrigation on the rainfall, but now today, you know very well, after the green revolution, many irrigation methods had developed, many machines has developed for the agriculture, so now we are getting more production, but at that time no any irrigation facilities were there. Third thing, fourth is the drafting of a constitution to change the future course of India. और इन सब चीज़ों के बावजूद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रूल्स रेगुलेशन, हाउ टू मेक द रूल्स फॉर ए रनिंग ए कंट्री, दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन होते हैं द रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच ए कंट्री और ए नेशन इज रन, जिसके द्वारा हम अब किसी भी देश को चला सकते हैं, वो रिटन रिकॉर्ड क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस समय देश को चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको ड्राफ्ट करना, उसको बनाना सबसे बड़ा एक चैलेंज था। For living together in a vast nation state such as India with a different type of people, a constitution is needed. और इंडिया जैसा where the so many diversity is there, it was very essential step. और इंडिया जहाँ पर इतने सारे डाइवर्सिटीज हैं, वहाँ पर इस देश को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी वर्क था, वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन। और वो क्या था? रिटर्न रिकॉर्ड, रूल्स और रेगुलेशंस। Some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future between
1946 and November 1949, which were held in New Delhi. And for this purpose, for forming the constitution of a country, many Indian leaders, some about 300 Indians, meet together in New Delhi for taking the decisions about the forming of a constitution and in between 1946 to 1949. और इसी के पर्पज से हमारे इंडियन लीडर्स जो फेमस थे वो लगभग 300 के आसपास लोगों ने मीटिंग की, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर, किसके ऊपर डिस्कशन किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। एंड दिस वाज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये जो मीटिंग हुई इसको क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिकॉज इट वाज हेल्ड फॉर ओनली द फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट it was called the Constituent Assembly. All these discussions resulting in the framing of the Indian Constitution, and all discussions were held regarding the constituent forming and the rules, regulations, fundamental rights, everything was discussed in this meeting, which came into effect on 26 January 1950. And after a long discussion and the meeting, finally our constitution has came to effect on 26 January 1950. It was completed on 26 November 1949, but the date was 26 January was earlier decided in the Congress session. So it was declared that 26 January we will celebrate our Republic Day. This day is celebrated every year as our Republic Day. The chairman of the Constituent Drafting Committee was Dr. Bhimrao Ambedkar, and many committees were there for forming the constitution. And one thing was that the Constituent Assembly के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी उसके जो चेयरमैन थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे. इट मीन्स ही प्लेज ए वेरी एसेंशियल रोल इन फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स वाई Dr. Bhimrao Ambedkar is called the father of our constitution, who played a very important role in the framing of a constitution and under whose supervision the document was finalized. और उन्हीं के सुपरवाइजन में ही सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइनल किया था, सारे रूल्स रेगुलेशंस को फाइनल किया गया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़े अच्छे लॉयर थे और उन्होंने सारे सर्कमस्टांसिस को फेस किया था, चाहे वो अनटचेबिलिटी हो, चाहे वो लोअर अपर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो. इसलिए उनका सबसे बड़ा रोल था, इसीलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि हु प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. सेकेंडली, कन्विंस टू ज्वाइन द इंडिया बाय डिस्प्लेइंग डिप्लोमेसी. इसमें आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल. सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर फॉलोइंग. और जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसके कुछ फीचर्स हैं. सबसे पहले उन्होंने क्या क्या फीचर, वैसे तो हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं सिविक्स के अंदर, बट इसकी को जो कॉमन फीचर्स हैं उसको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. ये सबसे पहला स्टेप लिया गया था कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑल इंडियंस अबाउ द एज ऑफ 21 वुड, कि इसके अकॉर्डिंग क्या था, उस समय 21 ईयर्स को रखा गया था कि जो 21 ईयर्स से ऊपर का होगा उसको बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन टू चूज देयर लीडर्स. कि आज जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है, जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग उसी समय हुई थी, लेकिन उस समय जो एज थी वो क्या थी, 21 ईयर्स. बाद में इसको चेंज करके कितना कर दिया है, 18 years. And today all persons who are above 18 years old can give their vote in the state and national elections. This was a revolutionary step essential for democracy. और ये एक सबसे बड़ा स्टेप था because democracy survive only on the basis of the universal adult फ्रेंचाइज. तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनानी है तो सबसे पहले पॉलिटिकल राइट लोगों को देना पड़ेगा और ये राइट सबसे पहले दिया गया था. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चूज टू ग्रांट दिस राइट टू ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास और एजुकेशन. और डेमोक्रेसी लाने के लिए ज़रूरी था कि सभी लोगों को ये राइट दिया जाए, इसलिए इसको कहा गया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, ऑल पीपल्स, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडियंस आर हैविंग दिस राइट. No any discrimination on the basis of gender, class, education, language, religion. सभी लोगों को, जो भी 18 साल से ऊपर है, सभी को वोट डालने का राइट उस समय दे दिया गया था. सेकेंडली, इक्वलिटी बिफोर द लॉ. इट मीन्स ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द law. All rules regulations
आर फॉर ऑल पीपल, नॉट एनी स्पेशल कास्ट, एनी स्पेशल रिलीजन और लैंग्वेज। जो भी लॉ बनेंगे सभी के लिए होंगे, किसी के लिए कोई स्पेशल लॉ या स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं है। ऑल पीपल आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, अगर प्रोटेक्शन का है तो वो सभी के लिए, इट मीन्स ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटेड इक्वलिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट और रिलीजियस एफिलिएशन। अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन हैज द सेम राइट्स एंड द सेम अपॉर्चुनिटी। और इसी के तहत ये भी दिया गया कि ऑल पीपल आर हैविंग द सेम अपॉर्चुनिटी सेम राइट्स। जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो सभी लोगों को है। ये नहीं कि किसी एक रिलीजन को है या एक कास्ट को है या एक लैंग्वेज वाले को, सभी के लिए बराबर है। इसका मतलब है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और इसी के बेस पर ही हमें इक्वलिटी का राइट दिया गया, जो हमारे एक फंडामेंटल राइट्स भी हैं। फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन देखिए, इन कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए दिस राइट ऑफ वोटिंग हैड बीन ग्रांटेड इन ए सीरीज ऑफ स्टेजेस। लेकिन अगर हम अदर कंट्रीज का देखें तो यूके है या यूएसए है, उसमें ये जो वोटिंग का प्रोसेस था, वोटिंग का राइट देने का जो प्रोसेस था, वो एक बार में नहीं हुआ। जैसे हमने तो सभी को एक बार ही दे दिया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ने सभी को एक बार ही दे दिया था, किसी को अलग से इसके लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना तो वुमेन्स को ना ही किसी सोसाइटी के और ग्रुप को। लेकिन अगर अदर कंट्रीज का देखें तो वहाँ पर क्या है, कभी किसी को वोटिंग का राइट दिया, फिर दूसरे सोसाइटी वालों ने स्ट्रगल किया, फिर उनको दिया गया, इस तरह से उनका प्रोसेस चला था। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, सबसे पहला है कि फर्स्टली ओनली मैन और प्रॉपर्टी कुड वोट, कि यहाँ पर सबसे पहले जिसके पास प्रॉपर्टी थी उसी को वोट डालने का राइट दिया गया था, यूके में और यूएसए में जो प्रॉपर्टी होल्डर थे उनको दिया गया था। ठीक है। सेकेंडली देन मैन हु वर एजुकेटेड वर रेडी, उसके बाद जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी थी और उसके बेस पर उनको वोटिंग का राइट दिया गया। थर्ड है आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल वर्किंग क्लास मैन ऑल्सो गॉट द राइट टू वोट, उसके बाद वर्किंग क्लास जो वर्कर्स थे, जो भी चाहे वो किसी लेवल पर वर्क करिए, उन्होंने स्ट्रगल किया और इसके बाद उन्होंने स्ट्रगल के बाद उनको भी वोटिंग का राइट दिया गया। एंड फाइनली आफ्टर ए बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन वुमेन वर ग्रांटेड द वोट, और फाइनली लास्ट में जो बच गई वुमेन्स, उन्होंने भी काफ़ी समय तक स्ट्रगल किया अपने राइट्स के लिए और बाद में वुमेन्स को भी ये राइट दे दिया गया है। तो इस तरह से बाकी अगर कंट्रीज का देखें तो वहाँ पर क्या था कि अलग अलग स्टेप में अलग अलग लोगों को राइट दिया गया था, लेकिन इंडिया के अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिटी है कि सभी लोगों को एक साथ ही वोटिंग का राइट है वो दे दिया गया था। नेक्स्ट है स्पेशल प्रिविलेज फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज इंडियंस, और स्पेशल जो पुअरेस्ट थे और जो क्या थे लोअर थे, जो माइनॉरिटीज में थे, उनके लिए कुछ प्रोविजंस भी दे दे ताकि उनको कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। जैसे हमें ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया था, इसी तरह से हमारे फ्रेमवर्क्स ने फील किया कि फ्यूचर में कोई भी किसी भी माइनॉरिटीज को एक्सप्लॉइट ना करे, इसलिए उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी दिए। वो देखिए क्या थे। अकॉर्डिंग टू द फ्रेमवर्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैड बीन डिप्राइव्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर सेंचुरीज, और उस समय फ्रेमवर्क्स को रियलाइज हुआ, उन्होंने फील किया कि कुछ सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्या कर सकते हैं, लोग डिप्राइव्ड कर सकते हैं। डिप्राइव्ड का मतलब है किसी चीज़ से वंचित कर सकते हैं या उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है, मेजोरिटी पर बेस होती है, और मेजोरिटी क्या थी, हिंदूज की थी। तो इसलिए उनको फील हुआ कि फ्यूचर में ये हिंदूज किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट ना करी, इसलिए क्या किया, देयरफॉर after a long debate the constitution assembly also mentioned that a certain percentage of seats in legislature as well as jobs in government be reserved for members of the lowest caste which include untouchables और हरिजन। और इसलिए लॉन्ग डिस्कशन के बाद डिस्कशन रिजल्ट निकाला गया कि लेजिस्लेचर के अंदर हम उनके लिए सीटें ही रिजर्व कर दें ताकि उनके ऊपर उन्हीं कैंडिडेट्स के इलेक्शंस फाइट कर सके और उनके पास भी पावर्स आ सके, कोई उनको डिस्क्रिमिनेट ना कर सके, इसमें चाहे वो अनटचेबल कास्ट थी या फिर हरिजन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सोसाइटी क्या है, कास्ट के बेस पर भी बटी हुई थी। अलॉन्ग विद द अनटचेबल्स द आदिवासीज और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर ऑल्सो अलाउड रिजर्वेशन इन सीट्स एंड जॉब्स, और इनके साथ साथ जो आदिवासी थे, अनटचेबल्स थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स थी, उनको भी ये रिजर्वेशन दिया गया जो आज भी कंटिन्यूसली है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज तक का इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ।